in the company of his beautiful wife. Even he was looking quite handsome. I am always blushing when I am with her. Ayya, 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 ayya. ayya. एक YRF खड़ा करने के लिए Adi had to sacrifice filmmaking. My battle with the industry is over. My battle with fans has begun. You know, dream हम wake up. हम लोग जब बात करते हैं, we don't know Tamil, so we का That's true. राजू हिरानी को नहीं देखा स्टॉप करते हुए, बिकॉज इज अ वेरी सिक्योर मैन. वो तो उसका बस चले तो ये भी बोल देगा कि ये उसने बनाई है. Well, we have with us a director who, for the very first time, was a part of a music video. Whose beautiful wife actually made a video for him on his birthday, and in the company of his beautiful wife, even he was looking quite handsome and smart over there. So, Anurag Kashyap, huge pleasure to have you back on Bollywood Hungama, and a belated happy birthday to you. Thank you. You know, you're looking very charming in that music video. A very nice sort of video as well, and I think Kalki can sing well. मेरी बीवी की एनर्जी जो है मेरे ऊपर आ जाती है. Bilkul. I think it shows. You were blushing, and it was going with the mood. The entire thing was going with the mood as well. I am always blushing when I am with her. Achha, you're always blushing when you're with her, but she says that you don't find time, or if she has to contact with you, she has to contact with you on Twitter. आप फोन नहीं उठाते हैं. ऐसा है, अभी क्या कर सकता हूँ. काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है. देखने तो एक दो तीन फिल्म रिलीज हो रही है. बहुत सारा. Okay, and you've been traveling a lot as well. I've been traveling a lot. I love traveling. You like traveling, in fact. I love traveling. Another film coming up, Ayya. It's not Ayya. It's Ayya. 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 There's more to the A. Ayya. Achha, like that. Ayya. It's a feeling. It's a feeling, okay. So tell us about it, because many people will say that it's not the regular Anurag Kashyap production in the first place. It looks like a full-on entertainer. Yes, and I think even Gangs of Wasseypur was entertainer, but yeah. This is in a different sort of. It's like item songs and everything. Regular is too limiting a term. When you say something is too regular, in the sense that you are defining in very very close brackets somebody's body of work. मतलब कि that means that something needs to be done. अगर लोग मेरे को बोलने लग गए कि ये रेगुलर अनुराग कश्यप फिल्म नहीं है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, क्योंकि वो रेगुलर वर्ड से डर लगता है. अगर कोई रेगुलर बोलने लग गया, मतलब कि लोग जो है मुझसे एक ही तरह की फिल्म एक्सपेक्ट करने लगे, तो अच्छी बात है. आप नहीं करते हो, लेकिन there is a certain group of people who expect that, because you've recently said on the Twitter that I love good indies. Good does not mean all indies. I'm a filmmaker and not an NGO for indies. There I said it. So आपने ये because there are certain group of people who would want you to make a certain brand of cinema. See, the thing is, I have been fighting for my cinema. I was initially fighting to get them released. I was fighting to get them made. Then some people joined along. तो एक की फिल्म जो मुझे अच्छी लगी मैंने प्रोड्यूस कर दी. अभी ऐसा हो गया है कि हर आदमी को लगता है कि उसकी फिल्म मैं ही प्रोड्यूस करूँगा, और हर आदमी को लगता है कि जो फिल्म बना लेता है कि मैं रिलीज़ करवा दूँगा. तो मेरे ऑफिस के में अभी क्या हो गया, मेरे पास कम से कम नहीं तो दिन में 7-8 लोग फ़ोन करते हैं कि सर ये फिल्म देख लो, हाँ इसको हेल्प कर दो. और मैं कैपेसिटी नहीं है. मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ, और पिछले 7 महीने से मैं प्रमोशंस कर रहा हूँ या रिलीज़ करवा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ. मैं क्रिएटिव काम नहीं किया है. एंड आई फील सफोकेटेड समटाइम्स. क्या बात. मेरा ये कि बॉस मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ. हाँ, मेरे कोई एम्बिशन नहीं कि मुझे कोई स्टूडियो खड़ा करना है, बड़ा आदमी बनना है, या ऐसा कुछ बहुत पैसे कमाने हैं. मेरा एम्बिशन था कि कुछ पिक्चरें अलॉन्ग द वे आई कुड हेल्प देम, एनेबल देम, गेट मेड, रिलीज्ड. उसमें कंपनी भी बन गई, बहुत कुछ हो गया. बट अभी सडनली ऐसा हो गया कि प्रेशर आने लग गया, मार्केट प्रेशर की, यार एक्सपैंड करो, मार्केट प्रेशर की, और पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, और फिल्म प्रोड्यूस करो. मेरा जो ग्रेन है वो फिल्म मेकर का ग्रेन है, मेरा ग्रेन प्रोड्यूसर का ग्रेन नहीं है. सो मैं जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ एक YRF खड़ा करने के लिए आदि हैड टू सैक्रिफाइस फिल्म मेकिंग. उसने 3 फिल्में बनाई हैं अभी तक, पिछले कितने सालों में, 15-16 साल में. करेक्ट. मैं मर जाऊँगा अगर मुझे ऐसा करना पड़े, तो मैं नहीं कर सकता. तो आई हैव टू मेक दैट चॉइस नाउ. I've got Phantom, which is handled by people who are enabled producers. Guneet is there, she'll handle everything. But I now want to make films. So I'm getting to make films. I have always wanted to make films. My love is for making films. And I want to start off making films after films. And that's what I want to do. I'm very clear.
इनफैक्ट एक और किसी का आपने रीट्वीट आपने किया है दैट आशिम अहलूवालिया इज एरोगेंट बिकॉज आई थिंक द इंग्लिश इज नॉट प्रॉपर बस आशिम अलिया इज एरोगेंट बिकॉज ही हैव टू गो अगेंस्ट बॉलीवुड अनुराग कश्यप इज नॉट बिकॉज ही इज अ सेल आउट यू नो इट्स लाइक डैम्ड इफ यू डोंट डू एंड डूम्ड इफ यू डू that's the thing. No, a lot of people have called me sell out and everything. Oh, that's okay because उनको लगता है अनुराग कमर्शियल होते जा रहे हैं कमर्शियल होता जा रहा है अय्या बनाए ये वो. My thing is you know मेरी फिल्म में तो हमेशा से गाने थे. राइट मेरी फिल्म में हमेशा से कुछ एक अलग तरह की चीज़ थी और अय्या तो किसी ने देखी नहीं है तो उनको क्या मालूम. अय्या एक अपने आप में यूनिक फिल्म है जो बहुत इजीली मेन स्ट्रीम में ट्रांसलेट करती है. मेरा है कि फिल्म अच्छी होती है बुरी होती है और कमर्शियल मेरे लिए वो होती है जो चलती है और नॉन कमर्शियल वो होती है जो नहीं चलती है. सो उस हिसाब से मेरी डेफिनेशन हमेशा से वही रही है और आई कैन नॉट हैव पीपल हु आर फैंस एंड फैंस ऑफन बिकम फैंस ऑन सीइंग वन थिंग और टू थिंग्स और दे स्टार्ट डिसाइडिंग कि क्या करना चाहिए. एंड आई फाइंड दैट वेरी लिमिटिंग बिकॉज बाहर रह के मैंने जो इतने साल बाहर रह के देखा है कि सारे एक्टर्स और सब लोगों का एक फ़ैन बेस बन जाता है और वो कॉन्स्टेंटली उस फैन बेस को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं. द आर्ग्यूमेंट बिगिंस विद माई फैंस वुड रिजेक्ट मी. नो इफ आई डू दिस आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट माई फैंस. वॉट हैपन्स इज दैट लास्ट फॉर सम टाइम एंड देन द सेम फैंस start getting bored with them and they say why don't you go out and do something else, but by then it becomes too late. I don't want fans like that who will limit me. In fact, in a magazine interview, it was asked you that you have certain fanboys who are absolutely zealous about you and all, and it's basically those fanboys that you have to be wary of. I'm fighting my fans. I'm thinking my battle with the industry is over. Industry has accepted me. My battle with fans has begun. You know, Anurag, what happens is, I think entirely as an audience, what I feel is कि आप बहुत ही ईमानदारी आप रखते हैं जो आपने whatever you experience in no smoking and whatever philosophy you have, that you don't want people who are associated with you to lose money. ये बहुत एक ईमानदारी का एक कॉन्सेप्ट आपका है जिसको आप I think you have been relentlessly pursuing that with all the films post no smoking and वो आपका कहीं ना कहीं it's working as well. तो उसमें बुराई क्या है? बहुत से लोग होते हैं जो कि सिर्फ पिक्चरें नहीं बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं, यू नो, एंड मे बी इट बिकम्स अ बिट वल्गर आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स नॉट द मूवी दैट दे आर सेलिंग आइटम्स एंड दोज कॉन्सेप्ट्स एंड स्टार्स एंड दोज थिंग्स. आपका कॉन्सेप्ट जो है कि आप ईमानदारी से कुछ आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप रखना चाह रहे हैं, अगर वो इंटरटेनिंग है उसमें बुराई क्या है? अगर लव शब्द है चिकन खुलाना अगर इंटरटेनिंग है उसमें बुराई क्या है? व्हाई डज इट हैव टू बी डार्क ऑल द टाइम? एब्सोल्युटली बुराई नहीं है. मैं बोलूँ जो भी है वो नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, आदमी के अंदर से आता है. मेरा है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँगा. उसको करते समय मेरी जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स समबडी हु हैज गिवन मी द मनी, जिसके बारे में बहुत बार बात कर चुका है. मैं नहीं चाहता कि उसके नुकसान हो, लेकिन दैट सेम फिलॉसफी अप्लाइज टू एवरीथिंग. दैट कैन नॉट, वो एक लाइन नहीं हो सकती कि मैं सिर्फ एक तरह की डार्क फिल्म बनाऊंगा या मैं सिर्फ ऐसी फिल्म बनाऊंगा. मुझे अपने आप को एक्सपैंड करने की जरूरत है. रानी डजंट वांट टू वर्क इन अ डार्क फिल्म मेड बाय यू. रानी will work in a dark film but not from me. Rani says I will work in a dark film if a filmmaker who has never made a dark film before is making it. तेरे साथ मैं वो काम क्यों करूँ जो तू 10 दूसरों के साथ कर चुका है? तू और मैं काम करेंगे तो हम लोग कुछ लाइट काम करेंगे. मैं दुनिया भर के साथ डार्क फिल्म करूँगा, तेरे साथ नहीं करूँगा. So I can respect that point of view. My thing is I also need to open my own windows. मुझे भी अपने safety zone से निकलना पड़ेगा. You know, I think it's important. It is absolutely It has no to be harm in organic. I can't force it. If I force it, I'll make a terrible film. You've written a Shakalaka Boom Boom, so वो तो डायलॉग्स लिखता है. डायलॉग्स लिखना इज नॉट राइटिंग. वो तो मैंने शाकलाका बूम बूम का बहुत बड़ी बड़ी क्लासिक्स लिखे हैं. आपने बताया उसके बारे में. मैंने इतनी बड़ी बड़ी क्लासिक्स लिखे हैं कि अच्छे अच्छे ना लिख पाए. Another controversy is taking place, the entire racist thing. You've been fighting that as well. That there are allegations कि आपने South Indians का मजाक उड़ा रहे हैं and all these things. I feel things. that, you know, people who are reacting to it are reacting from their own some kind of a deep set complex, because I don't understand how can they accuse somebody based on one dialogue. It's a matter of choice, and it's a character who's talking about she likes the sequences. I want to tell him मुझे गोरे लोग नहीं काले लोग पसंद है. It is based on how we are conditioned. हम लोग गोरे और काले को कैसे देखते हैं in our country, and this character is coming from there and speaking a line. So you, in effect, what you are doing is you are making fun of ourselves. गोरे लोग नहीं, मुझे काले लोग पसंद हैं. अय्या सूर्या. और उसको कोई इस तरह से देखता है तो वो आदमी की खुद के लॉन्ग सप्रेस्ड रिप्रेस्ड इश्यूज हैं. बिकॉज इन अ कंट्री लाइक दिस फॉर मी रेसिज्म वुड बी, अगर वो बोले मुझे काले लोग नहीं गोरे लोग पसंद है.
तो वो एक तरह का रेसिज्म होता है कि इनहेरेंटली आर स्किन्स इन मेजॉरिटी वे इज डार्कर, राइट? तो रेसिज्म वो हो जाएगा अगर कोई कह रहा है, और वो भी अगर इंटेंशनली कह रहा है। इसमें का इंटेंशन ही वो नहीं है। तो पीपल हु आर टू हरी टू राइट नाउ, क्या हो गया इंडिया में ना, आदमी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत जल्दी कमेंट करता है और बहुत जल्दी ओपिनियन फॉर्म करता है। 3 मिनट के ट्रेलर को देख के एक लाइन को लेके रिएक्ट कोई करने लग जाए तो फिर मेरे को वो आदमी का ओपिनियन नहीं मैटर करता है, बिकॉज इन माई आइज दैट पर्सन already has gone down. But many times filmmakers they love these sort of controversies. Many times controversies are created. Yeah, they're like people publicity might exercises. create controversy, but my problem is my career started with controversies revolving around me, and my perception is I'm a guy who's controversial, who tries to create controversy. Nothing. If I have to provoke people, I would actually bring them into the theater and provoke them, and provoke their morality, and provoke them directly. Not create a frivolous controversy of what they're accusing me of.